अच्छा, what I am interested in is making equations. ठीक है, making equations और formulas. तो क्योंकि equations और formulas, that's one of your basics that you're going to need to do A levels. बाकी चीजें तो फिर हम रिवाइज कर लेंगे. हर टॉपिक होगा, energetics होगा, atomic structure होगा, chemical bonding होगी. तो बाकी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं रिवाइज होती रहेंगी. मोल्स एंड ये equations, ये important है क्योंकि this is based a lot on your O levels. तो brief description सारों को ऊपर ही पता होगा. There's a metal and there's a non-metal. तो metals का मैंने बताया था कि they form positive ions, और non-metals का मैंने बताया था कि they form negative ions. ठीक है, जब metal और non-metal सामने होता है तो metal electron lose करता है, non-metal electron gain करता है. So this over here is an example of Na and Cl, Na plus 1, Cl minus 1. उसकी रीजन भी मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन की थी कि why do metals lose electrons, why do non-metals gain electrons, मतलब why do they do that? तो उसका मैंने पहले बताया था कि जब आप across the period move करते हो ना towards the right, तो प्रोटॉन ज्यादा होते रहते हैं. जैसा सोडियम यहाँ पे बैठा हुआ है, in group 1 it has 11 protons. Chlorine is at completely the opposite end, so it has 17 protons. तो कौन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है, योर न्यूक्लियस हैज दीज प्रोटॉन्स, ये बीच में बैठे हुए हैं. ठीक है, ये जो एटम बना हुआ है सामने, right in the center, these are the protons. These are the ones that are positively charged and they are the ones that are attracting electrons. तो अब ऑब्वियसली ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन जो होगी वो ज्यादा होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो वो फिर दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स छीन के अपने पास रख लेगा. सोडियम जो है 11 प्रोटॉन्स, इट डजंट रियली अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स वेरी स्ट्रांगली क्योंकि प्रोटॉन्स ही कम है. तो एंड रिजल्ट ये होता है कि अगर सोडियम और क्लोरीन आमने सामने आ जाए तो 17 प्रोटॉन्स इट हैज अ मच स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स. तो वो उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, जो यहाँ पे सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन था, उसको खींच के इट्स गोइंग टू पुल इट एंड गेन इट एंड इट विल फिल इट्स आउटर शेल. तो नॉन मेटल जो होते हैं ना, अपने आउटर शेल कंप्लीट कर लेते हैं बाय दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स छीन छीन के, बाय पुलिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स. मेटल जो होता है वो फिर बेचारा अपना आउटर शेल ना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है. ठीक है, ये तो ओवरी सारों को क्लियर है ना कि आयोनिक कंपाउंड किस तरह फॉर्म होता है. ठीक है, इज दिस क्लियर? अमाद, यहाँ तक तो क्लियर है ना? जी सर. अच्छा, बाकी मरियम, बाकी सारे, फारिया, आई थिंक कौन कौन है? जस्ट लेट मी चेक 1 सेकंड के. ठीक है, हिबा, ये सारा क्लियर है ना? Yeah. Yes, Okay. sir. अच्छा, so next part, I'm not going to do dot and cross diagram right now. ठीक है, I'll just jump to formulas. Basic idea देना था कि there's a positive ion and there's a negative ion and they're forming an ionic lattice. मतलब NaCl. NaCl is called the formula unit. उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें, मतलब this is not NaCl, मतलब उसका ये मतलब नहीं है there's only one Na and one Cl. In reality, you have a lattice. You have a lattice, an ionic lattice, जिसमें there would be sodium ion, which would be attracting a Cl minus 1 ion. लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी. The negative ion would again be attracting a sodium ion from all sides. So from all sides, sodium ion would be attracting Cl ions. ठीक है, 3-dimensional. Another Na plus 1, another Cl minus 1. So every ionic compound is basically all these positive and negative ions, they're just grouped together. They're all attracted to each other. So वो सारे, they're all sticking together. ठीक है, so they're forming a lattice. Lattice की different shapes हो सकती हैं. NaCl is cubic. बाकी ionic compounds होते हैं जिसमें charges different होते हैं, sizes पे भी matter करता है. तो the shapes could be different. कि so this is what an ionic lattice looks like. अच्छा, coming back, we'll just focus on formulas of ionic compounds. Now the first thing is कि formula से पहले ना आपको charges पता होने चाहिए कि किस ionic compound के ऊपर क्या charge होगा.
So you have group 1, you have group 2, you have बीच में there is transition metals. Then you have sorry group 3 and onwards, group 4. ठीक है, 6, 7, and then your noble gases, which is your group 8. ये याद रखना कि A levels के जो periodic table है उसके अंदर this is called 13, 14, 15, 16, 17 and 18. ठीक है, तो ये बस ये थोड़ा सा नाम चेंज हुआ हुआ है, that's it. So 3 would be called 13, 4 would be called 14 and so on. अच्छा, what are the charges? अभी हम group 3 को 3 कह रहे होंगे, that won't make a difference. Just remember group 3 is actually 13. अच्छा, what are the charges on the ions? Group 1 हमेशा outermost shell में there is 1 electron, तो उसका जो charge होता है it's always +1. Group 2 is always +2. Group 3 is always +3. उधर उल्टी साइड से शुरू हो तो group 17 is always -1. This is -2. This is -3, and this usually doesn't form ions. They can +4, -4. Or noble gases, they always or mostly have a charge of 0. Why do they get these charges? क्योंकि group 17 में जो भी होगा ना उसके 7 electrons होंगे outermost valence shell के अंदर. So it's going to gain 1 electron. If it gains 1 electron, it will have a charge of -1. उसी तरह group 15 nitrogen it's going to have 5 electrons in its valence shell. तो उसको 3 चाहिए होंगे outer shell complete करने के लिए. It's going to gain 3 electrons and it's going to have a charge of -3. ये इस साइड पे मेटल्स आ जाते हैं, लेफ्ट साइड पे वो लूज कर रहे होते हैं. तो ग्रुप 13 वाला उसके outermost shell में 3 electrons होते हैं. It ends up losing those electrons, ends up forming +3. तो आपकी जो मेटल वाली साइड है ना, this is your metal side, they're forming positive ion. The non-metal side, they're forming negative ions. ठीक है, that was what the definition was. ठीक है, इसमें भी hopefully कोई क्वेश्चन नहीं होगा. अमाद, is this clear? मरीम क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, चलो ये तो फॉर्मूला किस तरह बनता है? फॉर्मूला बनता है कि there's going to be a positive ion and which would be attracted to a negative ion. तो एक क्रिस क्रॉस मेथड होता है. पहले तो एक डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि लेट्स से I have aluminium and I have fluorine and they're bonding together, metal and a non-metal. तो नॉन मेटल ने तो इलेक्ट्रॉन गेन करना है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है. तो मैं उसके ना वो ड्रॉ कर लेता हूँ शेल्स. Aluminium has a total of 3 shells. 13 electrons होते हैं. So that's 2 electrons. Then it has 8 electrons, and then it has 3 electrons in its outermost shell. ये outermost shell को हम अच्छा outermost shell को थोड़ा अच्छा this is aluminium. कितने लूज करने? लूजेस 3 electrons. उनको मैं मार्क भी कर देता हूँ, रेड के अंदर ड्रॉ कर लेता हूँ. ये जो बाहर वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट्स इवेंचुअली गोइंग टू लूज दीस 3 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, दे वुड बी लॉस्ट. मेटल है वो लूज करता है, अपना बाहर वाला शेल लूज करेगा. ऑन द अदर साइड यू हैव फ्लोरीन. फ्लोरीन इज इन ग्रुप 17, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स. 9 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि दे वुड जस्ट बी देयर इज गोइंग टू बी जस्ट 2 shells. As there's just going to be 2 shells and इसके इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसेस में ड्रॉ करते हैं 2 and 7. ठीक है, so it's 2 and 7. Fluorine only has room for 1 more electron. Group 17 वो सिर्फ एक गेन करता है. Now there's an issue when aluminium, a metal, and fluorine, a non-metal, they try and bond with each other.
तो एल्यूमिनियम अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, लेकिन फ्लोरीन जो है दैट इज केपेबल ऑफ ओनली गेनिंग एग्जैक्टली हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? जस्ट वन इलेक्ट्रॉन। One. ठीक है, वो तो एक ही गेन कर सकता है, उसके पास एक ही की जगह थी। तो फ्लोरीन इज गोइंग टू गेट अ चार्ज ऑफ -1। एल्यूमिनियम ने लेकिन 3 लूज करने हैं, मतलब अज्यूम करो लेट्स से उसने ये 3 भी लूज कर लिए। एल्यूमिनियम का हमेशा चार्ज +3 है, एल्यूमिनियम ने इवेंचुअली वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा मसला हो गया कि इसने तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, फ्लोरीन ने तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो उसका चार्ज +3 हो गया, इसका -1 हो गया, तो बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स किधर गए? तो इसमें क्या करते थे आप डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में? के एनीवन, एनी आइडिया? हिबा, कोई आइडिया? We exchanged the charges, ठीक like है, वो +3 fluorine. There will be 2 more fluorines ठीक है, added. ठीक है, सही है। तो बेसिकली आप क्या करते थे कि देयर शुड बी 3 फ्लोरीन्स, कि मतलब एक फ्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, तो अगर आपके पास इन टोटल 3 फ्लोरीन्स होंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स गेन जो होंगे दैट वुड बी 3, तो ऑटोमेटिकली 3 हो जाएंगे। तो देयर गोइंग टू बी 3 फ्लोरीन्स। तो यहाँ से ना वो एक तो दिस इज हाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर लॉस्ट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर गेन्ड, दे बिकम इक्वल एंड द फॉर्मूला इज एल्यूमिनियम फ्लोराइड का, इट्स AlF3। ठीक है, सो देयर गोइंग टू बी 3 फ्लोरीन्स। ठीक है, होपफुली ये सारों को क्लियर होगा कि आप फ्लोरीन्स की क्वांटिटी बढ़ा देते हो, क्योंकि एक फ्लोरीन ने तो एक ही गेन करना था, 3 फ्लोरीन होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स वुड बी गेन्ड। अच्छा, तो यहां से यू वर एबल टू डिराइव अनदर फॉर्मूला व्हिच इज द जो शॉर्टकट है फॉर्मूले का, दैट इज कि आपने ये फॉर्मूला बनाना था ना, तो उसके लिए यू डोंट नीड टू ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, देयर आर सिंपलर वेज एज वेल। तो फॉर्मूला ये था कि आपने क्वांटिटी पता करनी है ना कि आयोनिक कंपाउंड में किस आयन की कितनी क्वांटिटी है। तो द शॉर्टकट वाज अ क्रिस क्रॉस मेथड। अ क्रिस क्रॉस मेथड वाज कि हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया ना, देयर वाज मतलब हमने तो सोच के मल्टीप्लाई किया। तो एक शॉर्टकट ये कि अगर इसका चार्ज +3 है ना, तो दूसरे वाले को जाके 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसका चार्ज अगर -1 है ना, तो इस वाले को मल्टीप्लाई कर दो 1 से मल्टीप्लाई करना, खैर देयर इज नो पॉइंट टू इट। तो ये क्रिस क्रॉस होता था कि आपको ये इस टेंशन में नहीं पड़ना कौन कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कौन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। वो सिंपली उसका चार्ज उठा के ना, नॉट द प्लस एंड द माइनस, जस्ट द नंबर, ठीक है, उसका नंबर उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दो, और इसका जो चार्ज है तो वो ऑटोमेटिकली ना एंड रिजल्ट आ जाता था। मतलब फॉर एग्जांपल, तो एक और क्रिस क्रॉस कर लेते हैं। अब मैं डॉट एंड क्रॉस डायग्राम नहीं बनाऊंगा। एल्यूमिनियम ग्रुप 3 में होता है +3 है, दैट मींस कि इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन ग्रुप 6 में, ग्रुप 6 को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, इट्स -2, इट गेन्स, अच्छा इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन कि इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड इक्वल नहीं है। तो एक सेकंड फारिया का देख लें कि ठीक है, तो आपने बस क्रिस क्रॉस करना है और इसको उठा के, इसका जो 2 है ना वो उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका जो 3 है वो उठा के दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दो। तो दैट वुड बी योर फॉर्मूला Al2O3। व्हाई डज इट मेक सेंस कि अगर आपके पास 2 एल्यूमिनियम्स होंगे तो इन टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी लॉस्ट? इट वुड लूज अ टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। तो if you have 2 एल्यूमिनियम, so total electrons lost would be 6। और अगर आपके पास 3 ऑक्सीजन होंगे तो एक ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो 3 ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, एंड दिस issue would no longer be there. Number of electrons lost and the number of electrons gained, they would be equal. So that is what you have to do in crisscross. अच्छा, इसमें crisscross के अंदर एक चीज का ख्याल रखना कि जो रेशियो एंड में बनेगा ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का डेफिनेटली ये मतलब नहीं होता whenever you have an ionic compound, remember ionic compound के lattices होते हैं, they're very large lattices। ये जो 2 और 3 है ना, that's just the ratio। इसका ये मतलब नहीं है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो कंपाउंड है ना, क्रिस्टल है, उसके अंदर सिर्फ 2 एल्यूमिनियम के एटम्स होंगे और 3 ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। ये वो रेशियो बताता है। So let's say you have a very large crystal of Al2O3,
तो उसके अंदर there could be 2000 एल्यूमिनियम atoms ions and 3000 ऑक्सीजन ions इसी रेशो के मुताबिक। अगर 20,000 एल्यूमिनियम आयंस होंगे तो दूसरी साइड पे 30,000 ऑक्सीजन आयंस होंगे। तो आयोनिक कंपाउंड में जो रेशो जो फॉर्मूला होता है ना दैट टेल्स यू द रेशो। मतलब NaCl का जो क्रिस्टल होगा उसके अंदर एक Na और एक Cl नहीं होगा, उसके अंदर देयर वुड बी बिलियंस ऑफ Na एंड बिलियंस ऑफ Cl आयंस। बस उनका जो रेशो होगा वो 1:1 होगा। तो रिमेंबर दिस कि these are called formula units and these are ratios, these are not the actual number. Actual number किसी भी क्रिस्टल में वेरी कर सकता है। They could be big crystals, they could be small crystals. और फिर ये जो रेशियो है ना, it should be the simplest whole number ratio. जैसा 2 और 3 है ना, that is the simplest whole number ratio. A lot of times you can actually simplify the ratio as well. तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि a lot of times you can actually simplify, वो बाद में कर लेंगे। पहले तो let's say सोडियम है and I have phosphorus. I need to figure out कि क्या कंपाउंड बनेगा सोडियम और फास्फोरस अगर आपस में रिएक्ट करें। Sodium is in group 1 +1, phosphorus is in group 5, so it's -3. Crisscross करो तो फॉर्मूला क्या होगा? It's going to be Na। ये 3 जो है यहाँ पे 3 that वोट के यहाँ आ जाएगा, 1 would come over here। तो Na3 और P1 है, ठीक है। 1 नहीं लिखते हैं, लिख दो कोई मसला नहीं है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ना भी हो तो it just shows कि there's 1P। तो क्विकली ये व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर भी करो। आई विल ओपन अ पीरियोडिक टेबल, इंटरनेट के ऊपर ओपन कर लो, ग्रुप नंबर पता लग जाए, ठीक है। तो गिव मी द फॉर्मूलाज ऑफ दीज कंपाउंड्स। और ये सारे आयोनिक है, ठीक है। अच्छा ये 5 है आपकी स्क्रीन पे, ये कंप्लीट करो, ये व्हाट्सएप पे सेंड करो। इन 2-3 मिनट लगने चाहिए, 5 मिनट्स आपके पास, ठीक है। आई विल बी बैक इन 3-4 मिनट्स। ऐसे किसी ने कंप्लीट कर लिया? Yeah, I'll send you a picture. ठीक है। मरीम आपने कर लिए? अमाद
फर्स्ट वन का क्या? ठीक है सही। ये किसने भेजा है? हिबा आपने भेजा है? Yes. ठीक है सही है। तो चलो क्विकली इधर ही कर लेते हैं, जस्ट वन बाय वन के। अमाद किए फर्स्ट वन? जी सर। क्या बना है? Li2s। ठीक है, लिथियम +1 था, S-2 था, तो क्रिस क्रॉस किया तो। अच्छा, इसमें इसका इसका हिबा, व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? Lithium sulfate। Lithium. अच्छा एक सेकेंड, ये याद रखो कि आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर ना, अगर तो खाली एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं तो ये लिथियम और सल्फर है ना, लेकिन जो नॉन मेटल वाली साइड होती है ना, उसका जो नाम होता है ना, उसके एंड में आइड आ जाता है, बट ओनली व्हेन इट्स ओनली द एलिमेंट, IDE आ जाएगा। ठीक है, सो इट्स लिथियम सल्फाइड, टी भी नहीं, ठीक है, डी। ये सारों में यही होगा, एल्यूमिनियम एंड फास्फोरस। अमाद इसका क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा? Aluminum phosphide। नहीं, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला? एक Sir, सेकेंड। ALP. ALP। ठीक है, AL और P होगा खाली। अच्छा रिमेम्बर, वो वैसे तो ये इधर लोग गलती कर लेते हैं, ये +3 था या -3 था। इफ यू डू क्रिस क्रॉस तो 3 और 3 आ जाएगा, लेकिन दैट रेशियो कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड, तो वो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, सो इट्स जस्ट AL and P and the name would be aluminium phosphide। ठीक है, Sir, फास्फोरस। phosphate क्यों नहीं? हम्म I don't understand. Phosphate क्यों नहीं? कि फॉस्फेट कुछ और होता है। मैंने कहा कि IDE, नाम के एंड में ना IDE लगेगा। अगर इफ इट्स ओनली द एलिमेंट, मतलब फास्फोरस अकेला होगा ना, वो जो 8 और T जो आ जाता है ना, वो PO4 -3 होता है, वो Okay. ठीक है, वो कोई और चीज होती है। इफ इट्स ओनली द एलिमेंट तो IDE। जैसे कैल्शियम ब्रोमाइड अगला, ठीक है, तो कैल्शियम, अच्छा ये जल्दी से कर लेते हैं, आई थिंक यू नो हाउ टू डू दिस। तो कैल्शियम ब्रोमाइड होगा, so this would be calcium bromide, और अगला Mg2+, Cl-1, तो MgCl2 हो जाएगा। ठीक है, तो एंड सो ऑन। लास्ट वन बैरियम ग्रुप 2 में 2+, N3- है, तो इट वुड बी Ba3N2। ठीक है, दिस वुड बी, क्या नाम होगा इसका? Barium nitride। ठीक है, बैरियम नाइट्राइड। तो ठीक है, ये सिंपल एक्सरसाइज, ठीक है, कि क्रिस क्रॉस करना है और यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। अब अगले में मूव करते हैं कि most of your ions, they're not just elements। ट्रांजिशन, अच्छा एक इसमें एक पॉइंट ऐड कर लो कि ट्रांजिशन मेटल्स का वेरिएबल चार्ज होता है, तो दैट्स ऑलवेज, मतलब यू कांट रियली गेस कि ट्रांजिशन मेटल का क्या चार्ज होगा, वो कोई आपको बताएगा तभी आपको पता लगेगा। अगर वो कहेंगे आयरन 2, तो देन दैट मींस कि आयरन इज 2+। इफ दे से आयरन इज 3+, आयरन 3 है, तो ट्रांजिशन मेटल का चार्ज आप इसमें फिगर आउट नहीं कर सकते। अच्छा, मूविंग ऑन टू पॉलीएटॉमिक आयंस, जो ये भी हमने थोड़ा सा बीच में मेंशन भी किया था, व्हिच वाज, अच्छा, सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि समटाइम्स you have molecules which are covalent, which are mostly covalent, but those molecules, they end up losing or gaining electrons to form polyatomic ions. These sulfate, nitrate, carbonates, etc., these are polyatomic ions. For example, I'm going to pick this example, hydroxide.
हाइड्रोक्साइड क्या होता है? इट्स OH1 माइनस, ठीक है, सारों को पता होगा, ओ लेवल्स किया, तो हाइड्रोक्साइड इज OH1 माइनस, शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पहले दे दें। हाउ डज अ पॉलीएटॉमिक आयन फॉर्म? Polyatomic ion, so I'll just start with the example of water. Oxygen is in group 6. So it has 6 valence electrons. Okay, that's fine. Hydrogen जो है ना वो it's a non-metal, वो किसी group में नहीं होता. It's a non-metal. ऑक्सीजन को टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? रिमेंबर मैंने कहा था कि नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे होते हैं, तो या वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को ना, वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ऑक्सीजन को ना 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज रूम फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या पकड़ करता है कि इधर हाइड्रोजन जा रहा है, उसको पकड़ के ना उसके इलेक्ट्रॉन को अपने साथ जोड़ लेगा, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को उसके पास अकेला नहीं जाने देगा, क्योंकि हाइड्रोजन इज नॉट विलिंग टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, तो वो पूरा का पूरा हाइड्रोजन एटम ही खींच के साथ आ जाएगा। तो ऑक्सीजन उसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन इज नॉट विलिंग टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन्स, तो वो शेयरिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, पूरा का पूरा हाइड्रोजन का एटम आ जाता है। एंड द सेम प्रीटी मच हैपेंस ऑन दिस साइड, कि ये आपका ना आया हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच के उसने जोड़ लिया। दिस इज योर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड दिस इज कोवलेंट बॉन्डिंग। तो कोवलेंट बॉन्डिंग में ना नो वन इज विलिंग टू गिव अप देयर इलेक्ट्रॉन्स, तो वो बस फिर शेयरिंग शुरू हो जाती है। अमाद ये क्लियर है? हिबा क्लियर है? मरियम क्लियर है? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, so this is a covalent molecule. No one ends up gaining electrons, no one ends up losing electrons, so it's perfectly covalent or neutral, ठीक है, it's perfectly neutral, no charges. But sometimes what would happen is, let's say ये let's say situation यहाँ तक पहुंची है और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब मसला ये है कि ऑक्सीजन स्टिल नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, वो कहीं ना कहीं से ना 1 इलेक्ट्रॉन खींच के अपने पास लेके आने की कोशिश करेगा। So what if there's a metal? What if there is sodium lying somewhere around? मेटल क्या करता है? मेटल से इलेक्ट्रॉन मांगो तो मेटल तो अपना इलेक्ट्रॉन वैसे ही दे देता है, ठीक है, वो तो अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही नहीं करता। तो लेट्स से ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, सोडियम से, इट्स अ मेटल, एंड दे ऑब्वियसली लाइक टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल की तो पूरी कोशिश होती है कि अपने इलेक्ट्रॉन से जितनी जल्दी वो जान छुड़ा ले, ठीक है, उसके पास इतने प्रोटॉन्स नहीं होते कि वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करे। तो ये मॉलिक्यूल जो है ना, आधी कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहा था, बीच में ही ना आयोनिक शुरू हो जाएगी कि वो 1 इलेक्ट्रॉन तो उसने हाइड्रोजन से मांगा, तो हाइड्रोजन ने उसको दिया नहीं, तो वो पूरे हाइड्रोजन को खींच के अपने साथ जोड़ लिया उसने, शेयरिंग शुरू हो गई। दूसरी साइड पे सोडियम पड़ा हुआ है, तो सोडियम से इट बोरोज 1 इलेक्ट्रॉन। व्हाट सोडियम डज इज वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन उसी को दे देता है, वो कहता है कि तुम ही रखो। तो और सोडियम क्या बन जाएगा, इसको हटा देते हैं, तो सोडियम बिकम्स एनायन +1। अब ये जो चीज थी ना, ये जो मॉलिक्यूल था, जो कि अभी आधा मॉलिक्यूल बना था, तो उसने ऑक्सीजन ने अपने आउटर शेल तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन वो कंप्लीट करने के लिए इट हैड टू गेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड, यानी इन टोटल ये जो पिंक वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये उसने इससे गेन किया। सो इन टोटल दिस एंटायर मॉलिक्यूल एंडेड अप गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसका जो चार्ज होगा दैट्स गोइंग टू बी -1, एंड दिस इज योर हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो और ये क्या है? ये सोडियम आयन है। दिस इज बेसिकली योर NaOH मॉलिक्यूल। NaOH का मॉलिक्यूल तो नहीं होता, आयोनिक कंपाउंड, तो क्रिस्टल होता है NaOH का। So polyatomic ions, I repeat, कि you'll have these molecules जिनके इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हो रहे होंगे, जब वो जाके मेटल से मांगेंगे, मेटल उनको अपने इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही दे देगा, तो वो फिर आयन बन जाएंगे। डू यू गेट दिस पॉइंट सारों को? Yes. ठीक है, अमाल क्लियर है ये? जी सर। Yes, sir. चलो फारिया, इज दिस क्लियर? Yes. अच्छा बस ठीक है। ये एक सेकंड, क्वेश्चन भी था क्या ये? हाँ ठीक है, यू कैन वो टाइप आउट कर लो आंसर्स, बस वो मुझे बता दो ताकि वो मैं चार्ट ओपन कर लूँ सामने। चलो सही है। ये पॉलीटॉमिक आयंस ना डिटेल के अंदर
थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स अच्छा इसके स्ट्रक्चर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन दे कैन आस्क यू समथिंग अबाउट इट। तो हम एक दो और पॉलीएटॉमिक आयंस ये हाइड्रोक्साइड का याद रख लो कि ये स्ट्रक्चर होता है। एक दो और का ना कल डिस्कस करेंगे कि वो फॉर्म किस तरह होते हैं। खैर वी नॉट रियली इंटरेस्टेड इन द स्ट्रक्चर, करना हमने फॉर्मूलाज ही है। तो ये बस थोड़ा सा डेविएट करके ना फिर वापस ये पॉलीएटॉमिक आयंस पढ़ेंगे और फिर फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और इक्वेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, विल कंटिन्यू टुमारो देन। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? Nice. नहीं। चलिए ठीक है। अटेंडेंस के लिए ना ग्रुप के अंदर ना प्रेजेंट लिख दो, वो जो केमिस्ट्री वाला ग्रुप है, केमिस्ट्री वाले ग्रुप में। ठीक है, आप चारों हो ना, तो आप चारों जाके वहाँ पे तीन चार चार है प्रेजेंट वहाँ पे, जस्ट टाइप प्रेजेंट। ठीक है, ओके देन, टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। Allah Hafiz. Yes. Okay, sir.